Hello, myself M.K. Mishra, TGT English of JNV Devghar, and I am here with the first chapter of Supplementary Class 10th, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. About the author James Herriot. James Alfred Waite, born in 3 October 1916 and died in 23 February 1995, known by the pen name James Herriot, was a British veterinary surgeon and writer who used many years of experience as a veterinary surgeon to write a series of books consisting of the stories about animals and their owners. He is the best known for the semi-autobiographical works beginning with If Only They Could Talk in 1970, which spawned a series of movies and television series. This is a short and brief introduction of James Herriot. It is the two images of the dog Tricky. First image when he is hugely fat, and next when the dog is in the doctor's surgery among the other pack of dogs. Before going to the live video, we have some difficult word. Constitution means composition of something. Reverently, आदरपूर्वक, temptation, लालच, compelled, विवश करना, gleaming means reflecting light typically because they are clean, sofa or car driver, clasped, बंधन, trembled, कांपना, hurtling means move or cause to move at high speed, uncontrolled तरीके से चलना, lithe means दुबला पतला, और startle मतलब showing sudden surprise. Regime means a system to do something. Rumi मतलब watery. Lulled मतलब बैठना, लटकना कोई चीज़, जैसे यहाँ कुत्ते का जीव लटकना. लिस्टलेस मतलब डल. माल न्यूट्रिशन, कुपोषण. कॉड लिवर ऑयल एक लीवर का तेल. लम्बैगो मीन्स जॉइंट पेन, मसल पेन. टॉटरिंग मतलब ठुमक ठुमक कर धीरे धीरे चलना. ट्वीड मीन्स वुडन क्लोथ. वार्डरोब मतलब दीवार का अलमीरा. हार्नेस मतलब एक प्रकार का बंधन, फिटिंग. और डिस्ट्रॉयड मतलब बुरी तरह वरीड होना, अपसेट होना. बॉट्स, यहाँ बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब एक खास प्रकार का इंटेंस एक्टिविटी होना. रग मीन्स फ्लोर कवरिंग, चिथड़े से कोई चीज़ ढका होना. पैंटिंग हाफना. फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का समय. सुंड मतलब अनकॉन्शियस हो जाना. वेलिंग्स मतलब बिलाप करना. स्निफिंग मीन्स एक्शन ऑफ ड्रॉइंग इन एयर, जैसे कुछ चीज़ सांस लेना, जैसे कुत्ते किसी चीज़ को सूंघता. व्हिम्पर मीन्स लो साउंड, धीरे धीरे आवाज़ निकालना. ट्रॉटेड मतलब धीरे धीरे चलना. इनगल्फ्ड मीन्स किसी के चारों ओर घेर लेना. एंड स्लप्ड जब किसी बर्तन को हम साइड से चाटते या किसी पानी को बाहर निकाल देते कंटेनर से, तो दैट इज स्लप्ड. ब्रांडी एक दारू का ब्रांड है. जॉसलिंग मतलब धक्का देना. स्क्रिमेजेज मतलब रफ एंड टम्बल फाइट. ट्रेम्बल कुचलना. स्क्वैश्ड मतलब फ्लैट सॉफ्ट. सैगी लॉन्ग थिक and unkempt. Hovered means remain poised uncertainly. Madrana anxiously utsuk. And convalescing means recover one's health and strength one's period of time after the medical treatment, मतलब recover होना. Hello guys, good morning, and today I am here with the first chapter of the supplementary class 10th, A Triumph of Surgery by James Herriot. Before start the story, I would like to make you familiar with the important character of this story. In the main role, one of the pet animal, dog, and the name of the dog is Tricky. Next, Mrs. Pumphrey, a rich mistress of Tricky, very fond of her pet. And third character is writer himself, Mr. Herriot, a veterinary surgeon, very experienced and skilled surgeon, Mr. Herriot was. Actually, this is the story of pampering of a pet animal by rich mistress, which makes her dog seriously ill. ये कहानी एक ऐसे कुत्ते की है, एक ऐसे पेट एनिमल की है जिसके पैम्परिंग के कारण, पैम्परिंग मतलब लाड़ प्यार दुलार के कारण, उसने अपने कुत्ते को बुरी तरह बीमार कर दिया था.
तो I know you like the pet animals. Pet animals are very loving. They have the tricks. They are very beautiful, and so people always like the pet animals. But some of the rich men, they have their animals more than their sons, and they start pampering. और कई बार जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने एनिमल्स को भी इतना प्यार करते कि उसे पैम्पर करने की आदत डाल देते, उसे इतना एक्सेसिव लव देते कि वह कुछ उसका रिजल्ट अपोजिट होने लगता, विपरीत होने लगता। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, द स्टोरी स्टार्ट्स विथ एन इंसिडेंट व्हेन मिस्टर हैरियट सॉ ट्रिकीज अपीयरेंस। ये कहानी शुरू होती है जब मिस्टर हैरियट डॉक्टर एक दिन अपने कार से जा रहे हैं और वो देखते हैं रास्ते में ट्रिकी को। तो ट्रिकी का जो अपीयरेंस था, इट वाज शॉकिंग। ही वाज ह्यूजली फैट, बुरी तरह मोटा हुआ, लाइक ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग ऑफ ईच कॉर्नर। पूरे पांव के जो पांव थे उसके उसमें मांस फुला हुआ और जमीन को छूता हुआ, ब्रश करता हुआ। हिज आईज वर रेड एंड वाटरी, उसकी आंखें लाल और आंखों से पानी टपकता हुआ। एंड सो मिस्टर हैरियट द डॉक्टर, द वेटनरी सर्जन, was very concerned about the Tricky's health. Mrs. Pumphrey explained that the dog was dull and suffering from malnutrition. It is very, you can say, the ridiculous, very humorous here. So while the dog was becoming hugely fat, जहां कुत्ता एक तरफ भारी भरकम मोटा होता चला जा रहा है, और वहीं मिसेस पंफ्रे का सोचना है कि द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। डॉग कुपोषण का शिकार हो रहा है। और जानते हो उसका रिजल्ट क्या होता है? शी स्टार्टेड गिविंग सम एक्स्ट्राज बिटवीन मील लाइक कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। और इसलिए वो क्या करती है कि अपने मील के बीच जो कुत्ते का मूल खाना है उसके बीच में उन्हें परोसती है। क्या? कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, chocolates, biscuits. It is not possible for simple people, but she used to serve to the dog. जो एक हम लोगों के लिए नसीब नहीं होता, वो कुत्ते को परोसा करती थी। वो भी क्या? एक्स्ट्रा डाइट के बीच में, जिसका कुत्ता भारी भरकम मोटा हो रहा था, बीमार पड़ रहा था। मिस्टर हैरियट, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी स्किल्ड डॉक्टर, इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट द रीजन ऑफ इलनेस। उसके बीमारी का कारण समझ लिया था। इट वाज द डॉग्स ग्रीड फर्स्ट, ये कुत्ते की लालच, एंड मिसेस पंफ्रेज पैम्परिंग। और मिसेस पंफ्रे का जो पैम्परिंग था, ये दोनों बातें वहां स्पष्ट हो गई थी। ही सजेस्टेड मिसेस पंफ्रे दैट हर डॉग नीड्स अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल्सो द स्ट्रिक्ट डाइट। उसने कहा, डॉक्टर ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप इन्हें एक्सरसाइज कराइए, इन्हें एक्स्ट्राज देना बंद करिए, इसके डाइट को स्ट्रिक्ट करिए, इन्हें लिक्विड डाइट दीजिए, खाने की जगह पर पानी दीजिए। एंड ऑल्सो वार्न कि इफ शी वुड नॉट हार्डन हर हार्ट, अगर वो अपने दिल को कठोर नहीं करेगी, क्योंकि वो कुत्ते को मना नहीं कर सकती थी, तो रिजल्ट क्या होगा? द थिंग्स वेंट रॉन्ग। एक दिन चीजें बुरी होने वाली है। रियली मिस्टर ट्रिकी द डॉग वाज गोइंग टू इल सीरियसली, going to fall ill seriously. The dog was leading his life in a lavish manner. कुत्ते की जिंदगी जानते हो कैसे गुजर रहा? रईस जादे की तरह, जिसके विषय में आप सोच नहीं सकते। अंडर द पैम्परिंग ऑफ मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे के पैम्परिंग के चक्कर में कुत्ता जो है रईसों की तरह जिंदगी जी रहा था। बट एज मिस्टर हैरियट वार्न्ड, मिस्टर हैरियट ने जैसी चेतावनी दे रखी थी, within the few days the expected call came from Mrs. Pumphrey, and she again explained that Dr. Tricky had refused to taking any meal. उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है। He was not taking even the very important meal what he liked always. He had bought up vomiting and panting regularly. वो लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, वो हाँफ रहा है। द डॉक्टर मेड प्लान इन एडवांस, डॉक्टर ने एडवांस में प्लान कर रखा था। एंड डिक्लेयर दैट द डॉग मस्ट बी हॉस्पिटलाइज फॉर ए फोर्टनाइट। यहाँ डॉक्टर बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। आप समझ सकते हो डॉक्टर कितना स्किल्ड था अपने प्रोफेशन में। उसे लगा कि अब अगर इसे
मिसेस पंफ्रे के ऑब्जर्वेशन में छोड़ा जाएगा तो बिल्कुल गलत होने वाला है. एंड सो ही डिसाइडेड इन एडवांस. ही टोल्ड वेरी स्ट्रिक्टली द डॉग मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 15 days एंड ही मस्ट बी केप्ट अंडर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन. इसे हॉस्पिटलाइज करना है, इसे सर्जरी में पहुंचाना है. The two words as a title are triumph of surgery. Triumph मतलब victory, जीत, विजय, and surgery here is the doctor's cleaning. Okay? तो डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश दिया था. मिसेस पंफ्रे and all the staff members were in tears when doctor himself came there to collect the dog. सारे लोगों की आंखों में आंसू थे. ये जो सेपरेटिंग सीन था, पार्टिंग सीन था, जुदाई का दृश्य था. मिसेस पंफ्रे वॉज वेलिंग. सारे लोग रो रहे थे. एंड द डॉग हैड स्पेशल बॉल्स फॉर इज ईटिंग एंड स्पेशल कोट्स एंड डिफरेंट ड्रेसेस एंड देयर इज अ बंडल ऑफ ऑल द थिंग्स वाज गिवन टू द डॉक्टर. बट डॉक्टर डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग. ही इमीडिएटली टुक द डॉग एंड वेंट अवे. बहुत सारे सामान, बंडल भर सामान वो डॉक्टर के कार में रखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी नहीं लिया और डॉक्टर सीधा वहां से चल पड़ा कि उसे कुत्ते को अब सही इलाज करना है. अब एक बड़ा सवाल आता है, व्हाट वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू द ट्रीकी. एक्चुअली एट द सर्जरी, व्हेन ही केम टू द सर्जरी, अदर डॉग्स, द पैक ऑफ द डॉग केम देयर एंड searched him, surrounded him, but Tricky was lying motionless on the carpet. And other dogs thought that it was an uninteresting object. Okay? But you know what happened? The doctor had not given any medicinal treatment. डॉक्टर ने कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया. फिर कैसे वो ठीक हुआ? For the 2 days he had been given no food. 2 दिन तक खाना पीना बंद. Only the plenty of water. केवल पानी दिया गया था और कुछ भी नहीं दिया गया था. Within the 2 days, the dog started taking interest in the surroundings. 2 ही दिनों में कुत्ते ने आसपास जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था. And he also participated with other dogs in taking the meal, though Mr. Harriet managed the special ball for him to take his meal. And very soon, the dog, Mr. Tricky, you can say the main character of this story, became the accepted member of the gang. Only few days ago, it was an uninteresting object. ये बिल्कुल uninteresting था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर he became the accepted member of the gang, and now he looks like a hunting tiger. बिल्कुल एक शिकारी बाघ की तरह वो छलांग लगाता था और सब कुछ रिकवरी बड़ी तेज रफ्तार से चल रहा था. When Mrs. Pumphrey knew, because she always hovering behind the stage calling about the latest bulletin. मिसेस पंफ्रे हमेशा ताजी खबरों को लेती रहती थी और जैसे ही पता चला कि उसका कुत्ता रिकवर कर रहा है तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड हियर. यू नो व्हाट हैपेंड? दैट मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड गिविंग द डजन्स ऑफ एग्स. दर्जनों अंडे पहुंचाना शुरू कर दी. देन द वायन्स, फिर शराब की बोतल, दर्जनों अंडे टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ. एंड फाइनली she started giving the most branded wine, that is the brandy. You might have heard the name of the brand, brandy, to enrich the Tricky's blood. And for Mr. Harriet and his clinic staff, it was a ceremonial occasion. अब दर्जनों अंडे, शराब और ब्रांडी जब वहां हो तो दे स्टार्टेड द ब्रेकफास्ट विद द एग्स एंड फिनिश द डिनर विद द फायर ऑफ ब्रांडी. वो खाना शुरू करते थे अंडों के साथ और डिनर फिनिश करते थे ब्रांडी के जोश के साथ. बिल्कुल एक सेरेमोनियल ओकेजन था, एक महोत्सव चल रहा था. एंड सो दे वांटेड टू मेक ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट देयर. बट विद इन द 15 days, एज मिस्टर हैरियट प्रॉमिस्ड मिसेस पंफ्रे, and within the 15 days he was recovered completely. And so Mr. Harriet called Mrs. Pumphrey to collect her dog. Within the few minutes, a big car came in front of the clinic, and Mrs. Pumphrey was there. Doctor went to the garden and brought the dog to the outside the gate. When the dog saw Mrs. Pumphrey, he jumped at the lap of his mistress. वो सीधा छलांग लगा दिया मिसेस पंफ्रे के गोद में
और मिसेस पंपरे में सोचा भी नहीं था कि वह कुत्ता जो बिल्कुल वॉमिटिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, लिस्टलेस हो गया था, मोशनलेस हो गया था, इतना जल्दी वो रिकवर कर सकता था। मिसेस पंपरे थैंक्ड मिस्टर हैरियट एंड टोल्ड द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि इट वॉज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह कमाल है, ये जीत है, ये विजय है उस सर्जरी का, उस डॉक्टर क्लिनिक्स का। बट यू नो वेल दैट इट वॉज नॉट द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये बिल्कुल ही सर्जरी का कमाल नहीं था। इट वॉज ओनली द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड द स्ट्रिक्ट डाइट of the doctor. There is no medicinal treatment, and Tricky recovered from his illness. And so Mr. Harriot, the writer himself, who is a veterinary doctor, is very interested in the pet animals, and he treated the dog in very good manner. And so you can say the doctor is very intelligent doctor. This is the story of a triumph of surgery. And I would like to explain all these things by the slides and pictures. So go to the slides. Thank you very much. अब यहाँ मैं स्टेप वाइज कहानी बताता हूँ कि ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे के द्वारा ट्रिकी एक छोटे से कुत्ते को बहुत प्यार किया जाता। ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड बट नो एक्सरसाइज। वो केवल लालची है, भोजन पसंद करता लेकिन एक्सरसाइज नहीं। एज ए रिजल्ट ही बिकम फैट एंड मिसेस पंफ्रे बिलीव दैट ही बिकम लेजी बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। खाने के चलते वो मोटा हो गया है, लेकिन मिसेस पंफ्रे को ऐसा लगता कि वो कुपोषण का शिकार हो चुका है। मिसेस पंफ्रे वॉज वेल्दी वुमेन एंड सी लव्ड हर डॉग टू मच। मिसेस पंफ्रे बहुत ही अमीर महिला है और अपने कुत्ते को वो बहुत प्यार करती। इसको देखिए, सी गेव हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। उसे स्पेशल खाने में माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रात को हॉर्लिक्स दिया जाता था। सी गेव हिम ए लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज। वंस शी बिकेम इल एंड शी वॉज वरीड एंड मेड ए फ्रेंटिक कॉल टू हैरियट, वेटनरी सर्जन वॉज वेट। एक बार वो बीमार पड़ जाता और वो डॉक्टर को कॉल करती है। जेम्स हैरियट ऑलरेडी हैड गिवन सजेशंस रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस्ड डाइट बट सी नेवर फॉलोड इट। जेम्स हैरियट ने पहले ही वार्न कर दिया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट देना है, लेकिन वो बिल्कुल ही फॉलो नहीं की। ही वॉज ए वेट and he was shocked to see Tricky hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. मिस्टर हैरियट शॉक्ड हो गए थे उसको देखकर, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, हर कोने पर मांस फूलकर जमा हो गया था और ये बड़ा ही शॉकिंग था। अब मिस्टर हैरियट कुत्ते को ट्रीटमेंट कैसे देता? ही एडवाइज्ड हर टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। पहले तो उसने कहा कि इसको मीठा खिलाना बंद करिए। ही एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। मिस्टर हैरियट को पता था कुछ दिनों में कॉल आएगा, एंड इट हैपेंड, ऐसा ही हुआ। ही वॉज कॉल्ड बाय मिसेस पंफ्रे एज ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। तुरंत कॉल आया कि ट्रिकी ने खाना बंद कर दिया है। He told her that Tricky needed immediate hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight. डॉक्टर ने तुरंत बताया कि 15 दिनों के लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। There he gave him no food, no medicine, but plenty of water. वहाँ ना तो खाना ना तो दवा, 2 दिन तो केवल पानी मिला। Gradually he mixed with other dogs and started playing with them. He had a lot of exercises and fun at the surgery. वो कुत्तों के साथ घुल मिल गया, काफ़ी एक्सरसाइजेज किया और एक गैंग का मेंबर हो गया। He was completely recovered and transformed into a hard muscle dog. पूरी तरह वो ठीक होकर एक हार्ड मसल डॉग हो गया, जबकि पहले वो ह्यूजली फैट हुआ करता था। पंफ्रे अपने कुत्ते को ले जाती है। जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। सी वॉज हैप्पी एंड फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। मिसेस पंफ्रे बहुत ही खुश थी, आभार प्रकट कर रही थी। सी थैंक्ड हैरियट एंड सेड दैट इट वॉज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और उसने तो धन्यवाद देते हुए कहा कि ये कमाल आपके डॉक्टर से क्लिनिक का है। बट रियली इट वॉज नॉट द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये बिल्कुल ही डॉक्टर की सर्जरी का कमाल नहीं था। सी कलेक्टेड द डॉग एंड वेंट होम हैप्पीली। उसने कुत्ते को लिया अपने कार पर और खुशी खुशी अपने घर गई। अब कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर ऑफ वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज द फुल ऑफ कॉमन सेंस? कम टू द आंसर। The narrator, a veterinary surgeon, is very compassionate and honest man as he doesn't unnecessarily operate upon Tricky. बहुत ही ऑनेस्ट और दयावान व्यक्ति हैं वेटनरी सर्जन, और उसने किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया था ट्रिकी का। He goes out of the way to guide Mrs. Pumphrey that she should start
कीपिंग अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन द ट्रिकी डाइट एंड हिज एक्सरसाइज शेड्यूल। उसने ट्रिकी के लिए सुझाव दिया मिसेस पंपरे को कि उनका डाइट ठीक करें, उनका व्यायाम कराएं। He's tactful, वो tactful भी हैं because he knows how to get Tricky to the hospital, and his common sense can be seen by the simple fact that he just changed the eating and exercise schedule of Tricky, which helped him recover from his problems. उसे केवल एक्सरसाइज और उसके खाने के शेड्यूल को ठीक करके और उसे हॉस्पिटलाइज करके उन्हें ठीक किया था। ही डिड नॉट अननेसेसरली पुट हिम टू मेडिसिन, उसे कोई दवा नहीं दी थी। दूसरा सवाल है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? तो यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम एज मच एज ही वॉज स्टेइंग इन द सर्जरी। ही वॉज हैप्पी स्टेइंग इन द सर्जरी बिकॉज ही गॉट मेनी फ्रेंड्स विच ही डिड नॉट हैव एट होम। उसको सर्जरी में बहुत सारे नए दोस्त हुए थे जो घर में नहीं थे। ही वॉज हैप्पी टू गो बैक होम बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज लेविश लाइफ स्टाइल। अब वो रईसजादे की तरह नहीं जी रहा था जैसे कि जैसे यहाँ सर्जरी में था। हिज एक्साइटमेंट टू गो बैक होम कैन be seen from the fact that as soon as he saw his mistress, he jumped back into the car and started licking her face and roaming around the excitement. जैसे ही कार आया वो जंप लगाकर अपने मिस्ट्रेस के गोद में चला गया और उसे चाटने लगा था। I think he will be at home as well as because after earlier Mrs. Pumphrey did not take Mr. Harriot as White seriously, which led to the Tricky's hospitalization. अब यहाँ 4 सवाल मैंने दे रखा है और इस चारों सवालों का जवाब आपको खुद देना है, तो आप इसे पढ़ें और 4 सवाल का जवाब दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप इसे पसंद करते हैं, आपने पूरी इस तरह समझा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं इस चैनल पर, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू।